Hello everyone, welcome to lecture number 29. So we are continuing with PNC. This is lecture number 29 for you. Question number 1. Let us read the question. There are 5 tasks and 5 persons. Task 1 cannot be assigned to either person 1 or person 2. The task 1 can't be assigned to person 1 or person 2. Got it? Task 2, it must be assigned, to person 3 or person 4. Every person is to be assigned one task. In how many ways can the assignment be done? In such a case, you have to go for the condition where you can assign rather than taking the condition where you cannot assign, right? So if I take the condition that let us assign task 2 to P3, काम आसान हो जाएगा. There are 5 people here who are to be allocated with 5 tasks. If I assign task 2 to P3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा या नहीं? गॉट इट. बाकी क्या कितने टास्क है हमारे पास? कीप अ ट्रैक ऑफ इट. टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 एंड टास्क 5. Task 2 is already gone. Here in P1 position, you cannot give task 1. Got it? So how many tasks you can assign here? बताओ. आप T2 दे दिए हो, T1 असाइन नहीं हो सकता है, तो बाकी 3 में से कोई 3 आ सकता है. सो 3 केसेस. सपोज यहाँ पे T3 चला गया, तो T3 ऑलरेडी चला गया, T2 चला गया. अगर यहाँ पे सपोज आई हैव असाइन T3, दिस इज एन एग्जांपल केस वी डू टू फाइंड दिस नंबर्स, राइट? सपोज मैंने यहाँ पे T3 दे दिया, यहाँ पे तो T1 नहीं आ सकता है ना, क्योंकि T1 कैनॉट बी असाइन टू पर्सन 2. तो आपके पास कितने केसेस बचे हैं? T4, T5. तो 2 केसेस विल कम हियर. Now suppose I give T4 here, तो T4 is eliminated, T2 is eliminated, T3 is eliminated. बचे कितने? 2. तो यहाँ पे 2 केसेस और यहाँ पे 1 केस. तो टोटल कितना केसेस हो गया? 4 into 3, that is 12. Similarly, the task 2 goes to P4. The same 12 cases will come, no change. तो 12 plus 12, the answer would be 24. काम खत्म हो गया है, ऐड करना है, नेक्स्ट केस में 12 फिर से आएगा, 24. ठीक है. Now, many people who haven't done PNC might find it difficult to understand, but that is the storyline here. If you don't read PNC's basics, understanding the questions is a bit tough. So I would suggest you, it's not my fault here, it's the fault of the topic. आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा. बाकी सारे टॉपिक्स में क्या होता है कि इफ यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ बेसिक नॉलेज यू कैन अंडरस्टैंड. बट हियर असाइनिंग, हाउ इज दिस असाइनमेंट हैपनिंग, इसके लिए बैकग्राउंड 20 आवर्स का टीचिंग है. So we have done that in the comprehensive classes. You can check there. Okay. So please pardon me if you are unable to understand what I am telling right now, but it's totally fine. If you complete PNC, you can understand this quite easily, right? Now let us go to the question number 2. Very, very important question. It seems easy, but it is not so. In a society, it is customary for friends of the same sex to hug and friends of opposite sex to shake hands, right? So handshake will happen between opposite sex, that is जितने भी मेल है, जितने भी फीमेल्स है, उनके बीच में हैंडशेक्स होगा. यूजुअली हम हैंडशेक्स कैसे पढ़ते हैं? अगर टोटल n पीपल आर देयर, देन द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स वुड बी NC2. ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये काम यहाँ पे नहीं करेगा. दिस वोंट वर्क हियर. यहाँ पे कैसा काम करेगा? टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक वुड बी मेल इनटू फीमेल, बिकॉज मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट. देयर कैनॉट बी अ केस वेयर मेल विल बी इक्वल्स टू फीमेल. सो आप बता दोगे कि अच्छा 2n केसेस है. नहीं. सपोज देयर आर m मेल्स and there are f females, so total number of handshake will be what? अगर 2 मेल्स है 3 फीमेल्स है, so what will happen? The first male will do how many handshakes? 3 handshakes. The second male will do how many handshakes? 3 handshakes. So आप क्या कर रहे हो? 2 into 3 कर रहे हो, तो टोटल 6 आएगा या नहीं? तो अगर यहाँ पे बता रहा है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेट इन अ पार्टी एंड देयर आर 24 हैंडशेक्स, अगर 24 हैंडशेक्स हो रहा है, सो दैट कैन बी सीन एज मेल फीमेल प्रोडक्ट इज 24. So can I say 124? Can I say 2 or 12? Can I say this would be 3 and 4? Sorry, 3 and 8? Can I say it would be 4 and 6? Clear? फिर क्या आ जाएगा? 6 and 4 उल्टा रिवर्स चलेगा. 8 and 3, 12 and 2, 24 and 1. Got it?
अभी ये बता रहा है कि द सेम सेक्स विल डू अ हग, राइट? तो सेम सेक्स अगर हग होगा तो ये वाला केस इज नलिफाइड. Why? Because one person cannot hug with himself or herself. So this case is eliminated. Now to find total number of hugs here, you have to find total number of hugs here. How to do? Two people to hug, it will be 2C 2 case. 12 people to hug will be 12C 2 case, right? So your answer would be 1 into 12 into 11 by 2, that is 66. ये इंटू नहीं होगा, ये प्लस होगा. वाई? बिकॉज काम खत्म हो गया है. माई बैड. तो प्लस हो जाएगा 66. तो आंसर वुड बी 67. दीज आर द मेल हग्स, दीज आर द फीमेल हग्स. 67. क्या ऑप्शन में 67 है? नहीं है. क्यों? 39 30 21 20. सो दिस कैनॉट बी द केस. Let us go for 3 and 8. What will happen? 3C2 plus 8C2. Calculate karo. 3C2 will be same as 3C1, that is 3. 8C2 will be 8 into 7, 56 by 2, yani 28. So your answer would be 31 in this case. Is there an option 31? No. So this can also be, cannot be the case. ये केस फेल हो गया तो ये केस भी फेल हो जाएगा. ये केस फेल हुआ तो ये केस भी फेल हो जाएगा. बचे 4 और 6. तो यही आंसर होगा. इसमें कितने हग्स होंगे? 4C2 प्लस 6C2. 4C2 इज 4 into 3, that is 12 by 2, that is 6, plus 6C2 will be 6 into 5 by 2, that is 30 by 2, that is 15. So your answer would be 21, right? So you will get the answer as 21. Clear? I hope you have understood it. Got it? Now let us proceed to the next question. That is question number 3. In a question paper, there are 5 questions to be attempted and answer to each question has 2 choices. 5 questions to be attempted. Question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5. Each has 2 choices. ठीक है. It is given that no 2 candidates have given the answers to the 5 question in an identical sequence. For this to happen, the maximum number of candidates, ये सारे कितने कैंडिडेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें निकालना है, राइट? तो टोटल क्वेश्चंस 5 है. ईच क्वेश्चन का ऑप्शन 2 है. फर्स्ट क्वेश्चन में आप ट्रू और फॉल्स सिलेक्ट किए. काम खत्म हुआ है? नहीं हुआ है. प्रोडक्ट करना पड़ेगा. इन सबको आप प्रोडक्ट करोगे. सबको प्रोडक्ट करने के बाद कितना आएगा? 2 to the power 5. सो टोटल कितने पॉसिबल सीक्वेंसेस? 32 पॉसिबल सीक्वेंसेस. 32 पॉसिबल सीक्वेंसेस में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं? 32, बिकॉज नो 2 कैंडिडेट्स हैव गिवन अ आइडेंटिकल आंसर. सो आंसर वुड बी 32. Got it? Clear? Let us proceed to the next question. That is question number 4. This is a typical PNC question using the set diagram. नहीं, ये वाला नहीं. My bad. Now in this question, it has said how many numbers are there between 100 and 300. Clear? How many numbers are there between 100 and 300 which either begin with or end with 2? Which either begin with 2 or end with 2. हाँ, यहाँ पे ही set use होगा. देखो, there would be numbers which begins with 2. There would be numbers which end with 2. ये जो बीच वाले नंबर है वो क्या है? Which both begins with 2 and ends with 2. देखो, अगर मैं यहाँ पे A मान लूंगा और यहाँ पे B और यहाँ पे C. If I ask you, tell me the numbers which begin with 2. अब बताओगे सर A plus B होगा. If I tell you, tell me those numbers which end with 2. तो आप बताओगे कि सर B plus C होगा. क्वेश्चन क्या पूछा है? Which either begin with or end with 2. और मतलब ए यूनियन बी. ए यूनियन बी मतलब इन सबको लेना है, सबको. तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए प्लस 2B प्लस सी. 2B एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 2B आ रहा है, एक बी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हटा देंगे, माइनस बी करेंगे. ये माइनस बी का मतलब क्या है? दोज नंबर्स विच बिगिंस विथ 2 एंड एंड विथ 2, राइट? तो आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे. एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ऑल दोज नंबर्स विच बिगिंस विथ 2, यूनियन का मतलब और होता है, begin with 2 और end with 2. इसका ये मतलब है n of
begin with 2 plus n of end with 2 minus n of which begins with 2 and ends with 2. सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोबारा आ गया है, 2 बार कैलकुलेट हो गया है। एक कॉमन चीज है जो आपके साथ भी कैलकुलेट हो गया, मेरे साथ भी कैलकुलेट हो गया, तो किसी एक का हटाना पड़ेगा ताकि वी डोंट कैलकुलेट इट ट्वाइस। क्लियर? नाउ 100 और 300 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर दैट बिगिंस विथ 2? तो आप ऐसे फिक्स करोगे, 2 से फिक्स हो गया, बिगिंस विथ 2, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? आप बताओगे सर यहाँ पे 10 केसेस, वाई 10? 0 से लेके 9 आप कुछ भी डाल सकते हो। क्लियर? एक चीज याद रखना, अगर फर्स्ट पोजीशन होता है तो 0 इंक्लूड नहीं होता है, तो वहां पे 9 केसेस आता है। बाकी सारे पोजीशन में आप 0 को इंक्लूड कर सकते हो, तो आप 0 से लेके 9 कुछ भी नंबर डाल सकते हो, तो आपका टोटल केसेस 10 हो गया। क्लियर? यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, तो टोटल कितना हो गया? 100। सो फर्स्ट वाला केस वाला आंसर कितना हुआ? 100 प्लस एंड्स विथ 2। अच्छा, आपको एंड करवाना है 2 से, तो 2 से एंड करवा दो। यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, क्योंकि नंबर किसके बीच में है? 100 और 300 के बीच में। तो 2 केसेस हियर, 2 केसेस इन टू ये वाला पोजीशन में 10 केसेस आएंगे, 0 से लेके 9 आप कुछ भी डाल सकते हो। 2 इंटू 10 दैट इज 20 केसेस प्लस 20 माइनस हाउ मेनी नंबर्स आर देयर दैट बिगिंस विथ 2 एंड एंड्स विथ 2? बिगिंस विथ 2, एंड्स विथ 2, टोटल कितने केसेस यहाँ पे आएंगे? 0 से लेके 9 तक कुछ भी 10 केसेस, तो -10, तो योर आंसर वुड बी 110। क्लियर? देखो, इसको समझने के लिए आपका बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए। इफ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर, यू विल बी फाइंडिंग वे टू अंडरस्टैंड व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, तो क्या चल रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए आपका बेसिक्स पूरा तैयार होना चाहिए। यू हैव टू गो थ्रू योर बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट्स, then only you can come and understand these lectures, because these are PYQ solving, right? Let us proceed to the next question, that is question number 5. There are 4 horizontal, 4 vertical lines. 4 horizontal, 4 vertical. 4 horizontal, 4 vertical. Clear? And equidistant to one another on a board. What is the maximum number of rectangles and squares that can be formed? Maximum number of rectangles and square. इसका ये मतलब है all squares are rectangles. ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। सो मैक्सिमम होगा तो किसका होगा? रेक्टेंगल्स का होगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स? कैसे सिलेक्ट करोगे? 4 फ्रॉम द वर्टिकल साइड आउट ऑफ विच यू नीड 2। काम खत्म हुआ है? नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई करो। 4 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल साइड C2। क्लियर? आपको 2 सिलेक्ट करना है, 2 लाइन सिलेक्ट करना है आउट ऑफ द 4 गिवन लाइंस। 4C2 इंटू 4C2 यानी 4C2 का स्क्वायर। 4C2 का मतलब क्या है? 4 इंटू 3/2 दैट इज 6। 6 का स्क्वायर इज 36। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? ओके, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ये कैसे हो रहा है, आई वुड सजेस्ट अगेन कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ये क्या चल रहा है, राइट? Without completing your classes of PNC, don't come and watch this lecture. Now let us proceed to the next question. How many numbers are there between 99 and 1000 such that the digit 8 occupies the unit places? आपका 8 यूनिट प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा, 3 डिजिट नंबर चाहिए आपको। 3 डिजिट नंबर 8 एट द यूनिट प्लेस। अगर 8 को आपने फिक्स कर दिया तो यहाँ पर इस पोजीशन में 9 केसेस बनेंगे क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं होगा। 1 2 3 4 5 अप टू 9। यहाँ पे कितने केसेस आएंगे? 10 केसेस। सो 9 इंटू 10, 90 केसेस। सो योर आंसर वुड बी 90, राइट? पीएनसी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं इफ सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट इफ यू नो हाउ टू अप्रोच इट। So this was the question number 6th. Now coming to question number 7. A bag contains 20 balls. 8 balls are green color. Puzzle question. गलती से यहाँ पे आ गया बट सॉल्व कर लेते हैं। 8 balls are green color. व्हाइट में आपके 7, रेड में आपके 5। ठीक है?
What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded? मतलब जिंदगी खराब है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ इट, टू बी अश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर. वर्स्ट केस सिनेरियो लेना है. वर्स्ट केस में मतलब क्या करेंगे, पहला जब आप बॉल पिक्स करोगे, सब जिसने मैक्सिमम है वो पिक कर लिए, गॉट इट 8. उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम 7, तब भी सारा बॉल्स नहीं आया है, एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर चाहिए. जब आप नेक्स्ट बॉल पिक करोगे वो आएगा पक्का रेड. क्लियर? तो 8 7 15 116, सो टोटल 16 अटेम्प्ट्स मिनिमम रिक्वायर्ड to ensure that at least one ball of each color have been picked by you blindfolded. Clear? So answer would be 16. Got it? So I hope you have enjoyed it. You have understood what to be done in PNC. It requires a basic knowledge as well as application. So we'll see you again in the next lecture. Till then, have a great day. Bye bye. Take care, everyone. Jai Hind.